Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today is our 10th lecture. And we will continue the previous lecture for image interpolation, and we will go in detail about some more stuff, how we handle it. But in going into today's lecture, so what we have done in the previous lecture, we had a bit of introduction to interpolation, what it means, why do we need it, and what are the importance of it, and then again image resampling, how do we do it, and the basic operations of it. And then after that we have learned the algorithm types, that how many types that we can use for interpolation. In today's lecture we will again continue the same topic, image interpolation, and we will explain it in detail. And then after that we will go for the operations, different interpolation operation, and also the unitary matrix and its equation. So what is the unitary matrix? We will go in detail how do we use it. So as you remember, in the last lecture we were talking about sampling of one-dimensional signal, and that is f of t. So it is in direction of time. So we take some samples, and these are the sample values, the intensity values of sampling at location 0, at 1, 2, 3, 4, 5, and so on. And the quantization value is 0.5, 1.0, 0.6, 1.1, and same it is further on continues. So this is the basic one-dimensional sample of signal, and then if we want to have values in between here to represent it, so we do not have any option regarding that, because while we are considering the sampling, so we had to take in the basic simple intervals. So when we are taking intervals and it is after specific time, then we do not have information in between, and that is lost. So when we are going to have some transformation on the signal, then in that situation we do not have the data in between, because if you remember in the matrix, when we were rotating it, then in rotation we were losing some of the points, and when we are scaling up, then we do not have information in between some points. And this is because while we were taking the samples at that time, we do not have information in between. So for that reason we need to estimate the values in between, that what can be the possible values in between these samples. So this is instead of taking the resampling, what we do, we estimate the values in between. So before performing some transformation, we estimate these values, and then after estimation we can use this information for transformation. So we can fill that area which is in scaling up. So there are some points that are missing, so we can put the values over there. Or when we were rotating it, then in rotation this is also used, that some of the values that are lost, so instead of using that missing values, what we do, we use the values which are in between here, and these values are estimated. So that's why we were talking about that this interpolation is very important, and this process is called interpolation, while we are estimating the values in between the sample values. So for that we says that there should be some properties for interpolation, and these interpolation properties are that it should be finite range of support. So the samples that we have, and when we are estimating the values in between, this should be in a finite way. So it shouldn't be that we can take any value in between, or any from any location, and how do we take it. So these things should be with some limits, so it should have a finite number. Again,
smooth interpolation or no disconnectivity. Again, then if we want to interpolate the values in between, it should be smooth. It means that these values should have continuity. It should not be that we take value in between 0 and 1 and then we take values between 3 and 4. So it should not be disconnected. It should be connected, and we shall take the values in all the samples. And if we are following one specific pattern, then this pattern should be observed in throughout the signal. And then again, the shift invariant, that shift invariant that we are using, it should also be available there, and that is the value of this S that we were using. And this is because there was a problem which we will discuss it again, that if we are taking some values, so there is some misinterpolation. This means that the area which should represent more of the values, it was not representing. अगर आपको याद है तो हमने वो S की वैल्यू यूज़ की थी, जो अभी हम दोबारा देखेंगे. तो वो S की वैल्यू जो है वो उसको हम शिफ्ट इन्वेरिएंट कह रहे थे कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये होनी चाहिए, और वो हमें जब हम किसी मिस इंटरपोलेशन कर रहे थे, जब हम किसी पॉइंट की प्रॉपर इंटरपोलेशन नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त हमें ये शिफ्ट इन्वेरिएंट यूज़ करना था. तो ये सारे काम जब हम करते हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमें बी स्पाइन फंक्शन जो है वो हमें ये प्रॉपर्टीज़ दे रहा है. ये तीनों प्रॉपर्टीज़ ये फंक्शन फुलफिल कर रहे थे, इस वजह से हम बी स्पाइन फंक्शन को यूज़ करते हैं. और यहाँ पर हमें इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि एक तो ये कि ये जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं ये फाइनाइट हो, मतलब ये कि ये इनफाइनाइट ना हो. हम ये जो अब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उसकी नंबर जो है वो फाइनाइट होने चाहिए, मतलब क्योंकि 3 और 4 के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं. तो इस वजह से हमें ये नहीं करना कि हम इसको इन्फिनिट पे लेकर जाएं, हमें कोई फाइनाइट नंबर्स चाहिए होंगे. और दूसरा ये कि डिस्कनेक्टिविटी ना हो इसके दरमियान, मतलब ये कि हम कोई वैल्यूज़ अगर 1 और 2 के दरमियान ले रहे हैं या 0 और 1 के दरमियान ले रहे हैं, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम दरमियान में सारे वैल्यूज़ छोड़ दें और 4 और 5 की तरफ चले जाएं. तो हमें कंटिन्यूसली सारे जो सैम्पल्स हैं उनमें से इंटरपोलेशन करनी होगी. और तीसरी बात जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि अगर कोई एरिया जो है वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और वो इंटेंसिटी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो हम उसके लिए शिफ्ट इन्वेरिएंट यूज़ करते हैं. अब बी स्पाइन फंक्शन जो है वो असल में हमें ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमें फुलफ़िल करके दे रही हैं. तो अब हम करते क्या है कि अगर आपको याद है हमने फॉर्मूला जो यूज़ किया था कि हमारे पास है एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू, और हम इसमें पी लेते हैं पी आई इंटू बी आई के और टी, और हम इसकी समेशन करते हैं i इज़ इक्वल टू 0 टू n. तो ये अब वो फाइनाइट वैल्यूज़ हमें बता रही हैं, और जो हमारे सैम्पल्स हम ले रहे हैं वो हमारे पास p है, और जो हम बी स्पाइन फंक्शन है वो हमारे पास ये है कि हम यहाँ से वो जो सैम्पल्स इंटरपोलेशन कर रहे हैं वो यहाँ से होंगी. हम जो इंटरवल ले रहे हैं वो इसकी बेसिस पे होते हैं, और ये हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम p की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, तो वो p एक्चुअली हमारे पास सिंपल ये वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3 और सेम इसी तरह. तो ये हमारे पास p की वैल्यूज़ आ गई, और जो हम बी आई के ले रहे हैं वो हमारे पास ये बी स्पाइन फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे. और उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी आई के को, वो हमने ये देखा था कि हमारे पास बी आई के अगर है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी माइनस टी आई इंटू बी आई के माइनस
1 t divided by t I plus k minus 1 और माइनस t I, और हम इसको ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समेशन की वैल्यू आ रही है, तो बी आई के लिए हम यूज़ करते हैं दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा t I प्लस k माइनस t इंटू b I प्लस 1 k माइनस 1 t डिवाइडेड बाय ti प्लस k माइनस t I प्लस 1। और ये हमने डिफ़ाइन किया कि ये हमारे पास बी आई के की वैल्यूज़ आ गई कि हम बी आई के को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर दें तो वो हमारे पास बी आई के की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसके लिए हमने डिफ़ाइन किए थे कि हम कुछ इंटरवल्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हम हमारे पास अगर आते हैं बी आई 1 आता है तो उस सिचुएशन में हमारे पास रूल क्या आएंगे, वन की सिचुएशन में अगर हम बी आई 1 लेते हैं t का तो 1 आएगा उस सिचुएशन में अगर तो टी आई इज लेस देन और इक्वल टू t और लेस देन t I प्लस 1 और 0 होगा अदरवाइज। तो ये हमारे पास बी आई 1 की सिचुएशन में था। और अगर हम लेते हैं बी आई 2 लेते हैं 0 2 लेते हैं तो ये असल में हमारे पास आई को हम चेंज कर रहे होते हैं, तो आई क्योंकि हम चेंज कर रहे होते हैं तो आई 0 हो सकता है और 1 की सिचुएशन में हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन आएगी उसकी। लेकिन अगर हम आई की वैल्यू 0 रखते हैं और फिर हमारे पास 1 की बजाय हम 2 चेंज कर दें तो 2 की सिचुएशन में क्या होगा, और 3 और 4 की हमने ये लास्ट टाइम देखा था। तो इस सिचुएशन में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली 0 के साथ तो हमारे पास एग्जैक्टली इस तरह आएंगे कि हम अगर b 0 1 लेते हैं तो उस सिचुएशन में t 1 आएगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू t n इज लेस देन 1 और 0 आएगा अदरवाइज। अब हम चेंज कर रहे हैं आई हमारे पास क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 0 से तो ये हमारे पास 0 ही रहेगा। हम इस 1 को चेंज करें, अगर 1 होगा तो हमारे पास सिंपल रूल ये होंगे कि t की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आएगा अगर तो वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और तो ये हमारे पास सिंपल जब हम ले रहे थे वैल्यूज़ कांस्टेंट की सिचुएशन में हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब अगर हम लेते हैं वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं लीनियर, तो लीनियर में हम क्या करते थे कि हम वैल्यूज़ लेते थे b0 2 t रिप्रेजेंट करेगा t if t सॉरी यहाँ पर आएगा 1, अगर 1 होगा कब, if 0 is less than
इक्वल टू t। अब चूंकि हमारे पास 2 है वैल्यू, 0 से स्टार्ट लेंगे, इस वजह से जो एग्जैक्टली जो t की वैल्यू होगी, हम यहाँ पर बजाय इसके कि 1 लें तो हम t लेते हैं, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान जो वैल्यू होगी वो हम t के इक्विवेलेंट लेंगे। तो वो t की जो भी वैल्यू होगी, आगे वो हम जब डायग्राम में जाते हैं तो उसमें और एक्सप्लेन हो जाएगा। और उसके बाद हम जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगा वो t2 माइनस t आएगा। किस सिचुएशन में? अगर तो हमारे पास 1 है और लेस देन इक्वल टू t है और लेस देन 2 है। मतलब ये कि हमारे पास क्योंकि लीनियर है तो t से स्टार्ट होगा तो 1 पर पहुंच जाएगा, ठीक है, और 1 के बाद हमारे पास वहाँ से डिक्रीज शुरू हो जाएगा। तो जब डिक्रीज शुरू होगा तो वो 2 पर जब आएगा तो वहाँ पर बिल्कुल 0 हो जाएगा। मतलब 2 के इक्विवेलेंट नहीं होगा, हमेशा 2 से 0 ही रहेगा। और 0 किस सिचुएशन में आएगा? जो भी अदर वैल्यू आएगी, ठीक है, अदरवाइज। तो इसके बाद हम लेते हैं, आपको याद है हमने भी 3 नहीं लिया था लास्ट टाइम भी। उसकी वजह यह है कि वो हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि t3 आएगा by 6 if it is 0 is less than equal to t is less than 1, और हमारे पास वैल्यू आएगी -3 प्लस t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4 divided by 6 when it is 1 is less than equal to t and less than 2। और जो हमारे पास थर्ड है वो है 3t क्यूब माइनस 2 4 t स्क्वायर प्लस 60t माइनस 44 divided by 6, and this is when 2 is less than or equal to t and less than 3। और अब हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो आएगी 4 माइनस t क्यूब divided by 6 when 3 is less than or equal to t and less than 0, और 0 अदरवाइज। तो अब ये हमारे पास फोर्थ के लिए हो गई, मतलब ये कि हम अगर लेते हैं इसको क्यूबिक फॉर्म में। अब हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम bi1 लेते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही हैं, क्योंकि जो शिफ्ट है वो 0 और 1 का कांस्टेंट आ रहा है। जब हम i और 2 लेते हैं तो मतलब 0 और 2 लेते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो शिफ्ट है वो लीनियर आ रही है। और जब हम i0 लेते हैं और 3 लेते हैं तो सिचुएशन में क्वाड्रेटिक आ रही है, और क्यूबिक सिचुएशन में हमारे पास इस तरह शेप आ रही है जिसमें हम 5 वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। मतलब वो एक इंटेंसिटी से स्टार्ट होगा और दूसरे में जाकर कम्प्लीटली 0 हो जाते हैं। तो ये अब हमारे पास 4 डिफरेंट किस्म के बी स्पाइन फंक्शन आ गए हैं, और उनके जो नेचर हैं वो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये एग्जैक्टली काम किस तरह कर रहे हैं इसको अगर हम देखें
तो ये अब हमें पता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है जो कि है 1.3 तो 1.3 ऑलमोस्ट इस लोकेशन पर आ रहा होगा कहीं पर। तो ये जो पॉइंट है, अगर हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि इसके इंटरपोलेशन वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, और हम यूज़ कर रहे हैं I1 को, मतलब ये जो हम बी स्पाइन फंक्शन की नेचर जो हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं वो है ये वाली। तो अब इस सिचुएशन में हमारे पास अगर हम PI ले रहे हैं तो PI हमारे पास क्या होंगे, सिंपली 0 1 2 3 4 5 ये जो है PI की वैल्यूज़ होंगे। मतलब ये कि अगर हम P0 लेना चाह रहे हैं तो 0 की सिचुएशन में जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर होंगी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद अगर 1 लेंगे तो 1 की सिचुएशन में इसके दरमियान जो वैल्यूज़ होंगी उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर जब हम 2 लेंगे इसको तो 2 के दरमियान यहाँ पर आ रहा होगा। तो इस किस सैम्पल का हमने इंटरपोलेशन वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है वो इस PI पे डिपेंड कर रहा है। अब इसके बाद क्योंकि फार्मूले में हमारे पास सिंपली ये है कि अगर हम 0 1 लेते हैं तो उस सिचुएशन में PI की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। मतलब ये कि B0 और 1 अगर हम लेते हैं तो उस सिचुएशन में ये हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। अब हम चाहते ये हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं 1, और क्योंकि आइडेंटिफाई हम करना चाह रहे हैं 1.3 को, तो 1 से रिलेटेड जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। कैसे होगा, f ऑफ 1.3 इज इक्वल टू P0 B0 1 1.3 प्लस P1 B1 1.3। तो अब ये हमारे पास, और सेम इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास 0 आ जाएंगी, और अब हमने P1 और B1 की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है। तो अब इस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि P1 जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, इस वजह से ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। और जो भी वैल्यू होगी इसकी B1 और 1 की, तो हमने ये कहा था कि ये 1 किस सिचुएशन में होगा, अगर तो 1 होगा अगर तो वो 0 से ग्रेटर है, और इक्वल भी हो सकता है, और 1 से लेस है तो उस सिचुएशन में, और 0 होगा अदरवाइज। मतलब ये कि अब इसकी जो वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो होंगी जो कि P1 की होंगी। तो अब P1 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ सकती हैं, क्योंकि 0 से ग्रेटर है और इक्वल भी हो सकता है, और 1 के। अब हम जब यहाँ पर आते हैं तो 2 भी हमारे पास 0 हो जाएगा, इस वजह से हम इसको ड्रॉप कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू 1.3 की हम आइडेंटिफाई करेंगे वो एग्जैक्टली वो होगी जो हमारे पास सैंपल 1 की है। तो सैंपल जो हमने लिया था 1 का जो सैंपल हमने लिया तो वो क्या था 1.0। तो अब इसकी इंटेंसिटी 1.3 की क्या होगी, वो भी 1.0 होगी। तो यहाँ से अब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी हम वैल्यूज़ लेते हैं वो एग्जैक्टली इसी तरह लेंगे कि जो उसके एडजेसेंट P1 की जो भी वैल्यू होगी, सॉरी नॉट P1 की, जो भी वैल्यू PI की होगी हम एग्जैक्टली कांस्टेंट की सिचुएशन में वो वाली वैल्यू लेते हैं। मतलब ये कि अगर हमने 2.5 आइडेंटिफाई करना है कि 2.5 की इंटेंसिटी वैल्यू क्या हो सकेगी, तो वो होगी वो जो हमारे पास 2 की होगी। तो 2 की इंटेंसिटी वैल्यू अगर हम यहाँ से लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन की सिचुएशन में, और फिर हम आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो वो होगी 0.6 की इंटेंसिटी होगी 2.5 की भी।
तो ये अब हमारे पास कांस्टेंट हम इसको चेंजेस ला रहे हैं, मतलब ये कि हम वैल्यूज़ को हमेशा कांस्टेंट रख रहे हैं, और जैसे ही वो दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं वहाँ वो ड्रॉप हो जाते हैं। मतलब ये ड्रॉप का ये होगा कि हम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी वो इक्वल होगा 1 से हमेशा लेस होगा। इसका मतलब ये कि 1 से लेस होगा और 0 होगा अदरवाइज। मतलब ये कि अगर कोई भी दूसरी वैल्यू आएगी तो उसके लिए वो 0 हो जाएगा, मतलब वो ड्रॉप हो जाएगा एग्जैक्टली। तो इस वजह से हमारे पास ये सिंपल इंटरपोलेशन हो गई है क्यूबिक हमारे पास जो हम लेते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़। अब अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमारे पास लीनियर चेंजेस क्या आएंगी, तो लीनियर की सिचुएशन में हमने ये देखा कि हम नॉर्मली वैल्यूज़ लेते हैं 0 और 2 की। तो वो कैसे आती हैं कि B02 जो है वो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1 and then from 1 to 2 it is decreasing. How it looks like is like if we have a 0 and then 1 and then 2. So what we do, we increase from 0 here and then drop is from 1 to 2. तो अब ये हमारे पास सिंपली हम क्या करते हैं, अगर 0 2 ले रहे हैं, मतलब ये कि इस सिचुएशन में हमारे पास हम 0 और 2 के दरमियान जो वेरिएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब अगर हम B1 और 2 लेते हैं और ये 2 हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये कि अब हम B1 2 ले रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 के बजाय अब हो गई है 2। तो 2 की सिचुएशन में क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे 1 से और 2 पे जाकर हम इंक्रीज पॉइंट जो है उस पे पहुंच जाएंगे मैक्सिमम पे, और 2 के बाद हम जब आते हैं तो क्योंकि हम 2 वैल्यूज़ लेंगे तो हम 3 पे आकर ड्रॉप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो भी पॉइंट आएगा वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 2 पे हमेशा इसकी वैल्यू, क्योंकि हम वैल्यूज़ ले रहे हैं 1 से, 1 और 2 के लिए हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। 0 और 1 में 1 पे वो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा और 2 पे आकर 0 हो जाएगा। और अगर हम 1 2 ले रहे हैं तो इस तरह 1 से 2 पर वो इंक्रीज हो जाएगा और 2 से 3 पर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लेते हैं B1 की बजाय अब हम 2 लेते हैं और 2, तो वो हमारे पास इस तरह नेक्स्ट आ जाएगा। तो अगर हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा जब हम लीनियर चेंजेस ला रहे हैं। तो लीनियर की सिचुएशन में इस तरह होगा। अब अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 1.7, तो 1.7 मोर लेस हमारे पास कहीं इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी इंटेंसिटी वैल्यू अब हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, f ऑफ 1.7, ठीक है। तो 1.7 की सिचुएशन में हम जब वैल्यूज़ लेते हैं तो वो कैसे आएंगी, B0 to 1.7 प्लस P1 to 1.7 प्लस सो ऑन। तो हमने ये देखा कि अगर हम कोई वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं जो कि वैल्यू है 1.7, तो उसमें हमारे पास बेसिक जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जो सैम्पल वैल्यूज़ इन्वॉल्व होंगे वो होंगे 0 वाला कंपोनेंट और वो जाएगा हमारे पास 2 तक। तो ये जो कंपोनेंट है हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहेंगे और हम यहाँ पर लेंगे वैल्यू 1 और 2 की। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, हमारे पास 0 से हम स्टार्ट लेते हैं और ये हमारे पास सेकेंड आ जाएगा
ठीक है। तो ये मोर लेस हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इस पे इंटेंसिटी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। तो अगर हम उसको लेना चाहेंगे तो सिंपल हमारे पास ये लाइन आ जाएगी कि इसकी इंटेंसिटी वैल्यू क्या लेनी चाहिए। तो अब हमें ये पता है कि अगर हम क्योंकि जो B22 है वो हमारे पास 0 आ रहा है, उसकी वजह यह है कि जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था कि अगर हम 0.2 लेते हैं तो उस सिचुएशन में हम 0 इज़ लेस देन इक्वल टू t एंड लेस देन 1, और 2 माइनस t होगा 1 लेस देन और इक्वल टू t एंड लेस देन 2, और 0 होगा अदरवाइज। तो मतलब जो भी हमारे पास वैल्यूज़ इसके बाद आएंगी हम उसको 0 लेंगे। उसकी वजह यह है कि हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं वैल्यूज़ 1.7 की। तो 1.7 में जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो 0.2 की और 1.2 की चाहिए। इस वजह से जो B22 आएगा तो वो सिंपली B22 जो है वो सिंपली हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसके आगे जो भी वैल्यूज़ होंगे वो सारे 0 होंगे, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमने इनकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये हमें पता है कि BI के T को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं B0 के, और ये हमें पता है कि B0 के T माइनस I है। इस वजह से जब हम T माइनस I लेते हैं सिचुएशन में B02 जब हम लेते हैं तो उसमें उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंपली 0.7, क्योंकि जब हम T माइनस I करते हैं तो T माइनस I में हमारे पास 1.7 माइनस 1, ठीक है। तो जब हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास सिंपली 0.7 आ गया। तो 0.7 हम लेते हैं। तो अब ये वैल्यूज़ हमारे पास किस तरह आ जाएंगी, वैल्यूज़ हमारे पास अब ये आएंगी कि वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी f ऑफ 1.7 जो है इसके लिए हमारे पास B0 और B02 की वैल्यू आएगी 1.7 प्लस P1 2 0.7। अब हम यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो P0 हमारे पास ये है, और P1 जो हमारे पास P1 ये है। तो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से हम इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे पास लीनियर सिचुएशन में जो कंट्रीब्यूशन है 2 की वो भी साथ में शामिल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर निग्लिजिबल है। हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। हम जो सारे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो इसकी बेसिस पे ले रहे हैं कि मतलब ये जो रीजन है हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास असल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम सिर्फ P0 और P1 की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास P2 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। हालांकि इसकी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि ये इंटेंसिटी 0.6 और 1.0 है। तो अगर इनके दरमियान हम देखें तो हमारे पास कोई पॉइंट इधर आ जाएगा या जो इन दोनों के को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन इस सिचुएशन में हम सिर्फ P0 और P1 की कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, मतलब ये कि हम ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो कि इतना यूज़फुल नहीं है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये है हमारे पास शिफ्ट S के सिचुएशन में हम सिंपली उसको डिफाइन कर लेते हैं कि जब हमारे पास S आएगा तो S की सिचुएशन में 0.5 लेंगे हम कब, जब k की वैल्यू 1 होगी,
और 0 s की वैल्यू 1 लेंगे जब k की वैल्यू 2 होगी, और s की वैल्यू 2 लेंगे जब k की वैल्यू 4 होगी। तो अब हमने यहाँ पर फॉर्मूले में ये चेंजेस किए कि अब अगर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 1 अगर हम ले रहे हैं, मतलब ये कि हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं 1 के लिए, ये जो हम 1 यूज़ करते हैं, तो जब 1 हम लेंगे तो उस सिचुएशन में हम बजाय इसके कि 1 लें हम 0.05 लेंगे, और जब हम यूज़ करते हैं हमारे पास 2 होगा तो 2 में हम 1 लेंगे, और जब 4 होगा तो हम उसमें 2 लेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे हमारे पास जो वो शिफ्ट है हम बैक चले जाते हैं, हम जो रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये कि अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एफ स्टार इज ऑफ टी इज इक्वल टू पी आई बी आई माइनस एस के टी। तो एस की वैल्यूज़ हम चेंज करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एंड देन we will make the summation. So for this, how do we do it then? If we have 0, minus 0.5 and 1, then this means that last time we had the values which is starting from 0 to 1. Now it will start from minus 0.5 to reach to plus 0.5. So this is now the representation. Now in situation of 2, जब हम 2 ले रहे थे तो हमारे पास यहाँ पर हम 0 ले रहे थे, तो 0 से हम क्या करते थे कि हम 0 से स्टार्ट करते थे और आगे जाते थे, और हम 2 के दरमियान हमारे पास वैल्यूज़ आ रहे थे। अब हम यहाँ पर -1 लेंगे, क्योंकि जब हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जब हम s की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो जब हम s की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वो हमारे पास, क्योंकि k की वैल्यू अगर 2 होगी तो s को हम 1 लेते हैं, तो जब s को 1 लेंगे तो 0 से जब हम माइनस करेंगे 1 को तो -1 आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर तो हम k की वैल्यू लेते हैं 4 तो हम 2 लेते हैं, ठीक है, 2 वैल्यूज़ लेते हैं यहाँ पर s की वैल्यू। तो जब हम 0 लेंगे तो 0 से जब हम माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस वजह से अब बजाय इसके कि हम आगे जाएं, हम साथ में उसके जो पिछला रिकॉर्ड है, जो पिछले इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं, हम उसको भी साथ ले रहे हैं। तो इसका फ़ायदा अब ये होगा कि हमारे पास जो शिफ्ट है वो हम आगे चेंज करते जा रहे हैं, और उससे सारी इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर तो हम स्टार्ट करते हैं बी -0.5 और 1 लेते हैं, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं जो ब्लू में है। फिर अगर हम 0.5 पॉजिटिव है और 1 ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। तो सेम इसी तरह -2 की सिचुएशन में भी एग्जैक्टली इसी तरह ही होगा, और हमारे पास जब हम 4 की वैल्यूज़ लेते हैं k की, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका फ़ायदा अब ये होगा कि अगर हमने कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जो कि हमारे पास कहीं पर इधर आ रहा है, तो कोई भी पॉइंट हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें अब कंट्रीब्यूशन होगी सारे वैल्यूज़ की, और सारे वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ सकती हैं, उसमें 3 की कंट्रीब्यूशन भी होगी, 2 की भी होगी, और साथ में 1 की भी आ रही होगी, और 0 की भी आ रही होगी। तो इसका मतलब ये कि हम इन सारे वैल्यूज़ का जब एवरेज लेंगे तो वो हमारे पास उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हम सिंपल उस शिफ्ट के फॉर्मूला को यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसके बाद अब अगर हम शिफ्ट के फॉर्मूला को यूटिलाइज़ करेंगे तो अब हमारे पास एग्जैक्टली अगर हम लीनियर ले रहे हैं वैल्यूज़, तो लीनियर की सिचुएशन में हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, f ऑफ t इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 to n, समेशन हम ले रहे हैं, और p i b i माइनस 0.5 1 और t, ठीक है।
तो ये हम ले रहे हैं उस सिचुएशन में जब हम कांस्टेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो अब कांस्टेंट की सिचुएशन में अगर हम कोई आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं वैल्यू, तो वो एग्जैक्टली इस तरह होगा कि हम सिंपली बजाय इसके कि हमने यहाँ पर किसी पॉइंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि जो है 1.4 ले सकते हैं हम, ठीक है। तो 1.4 की वैल्यू हमने लेनी है। तो इस सिचुएशन में जो कंट्रीब्यूशन होगी वो हमारे पास यहाँ पर माइनस जो आ रहा है वैल्यू वहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ से होगी, ठीक है। तो मतलब ये कि हम साथ में जो पिछला वैल्यूज़ हैं ज़ीरो के उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ज़ीरो क्योंकि यहाँ से ये है ज़ीरो की वैल्यूज़, तो इस तरह आएंगी, ठीक है। और अगर हम जा रहे हैं 2 के लिए, तो 2 के लिए हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ आएंगे। और ये दोनों आपस में मिल रही हैं, लेकिन ये इस जगह पर वैल्यू होगी हमारे पास 0। सेम इसी तरह अगर हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू, तो अब हमारे पास सैंपल जो है वो कुछ डिफरेंट आ रहे हैं। तो अब ये हमारे पास सारी कंट्रीब्यूशन आ रही है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे कि हम इससे आगे जाते थे और जो इसमें कोई भी वैल्यूज़ आ रहे थे हम वो वैल्यूज़ की इंटेंसिटी ले रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन में जब हम वैल्यूज़ लेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि वो हम कौन से पोर्शन में लाई कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड ही हम उसके कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे। सेम इसी तरह अगर हम वैल्यूज़ ले रहे हैं लीनियर फंक्शन के लिए, तो लीनियर में भी अब बजाय इसके कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम अब स्टार्ट करेंगे माइनस में जाकर, और माइनस से हम यहाँ पर आ जाएंगे। और सेम इसी तरह हम इसके लिए तो अब ये हमारे पास उसकी कंट्रीब्यूशन आ गई। तो अब अगर हम कोई t की वैल्यू ले रहे हैं 2.3, जो कि शायद यहाँ पर आए, तो 2.3 की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू जो होगी वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे 2 का ये वाला पोर्शन, ठीक है। और साथ में ये वाला पोर्शन जो होगा ये होगा 3 का, और ये जो पोर्शन है ये होगा 2 का, ठीक है। तो इस वजह से अब जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों साइड से आ रही है, सिर्फ हम एक वैल्यूज़ को नहीं ले रहे हैं। तो अब इनके अगर हम एवरेज लेंगे तो वो हमें ये बता देगा कि इनके दरमियान की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी। सेम इसी तरह अगर हम लेते हैं क्यूबिक सिचुएशन में, तो क्यूबिक में भी हमारे पास एग्जैक्टली इसी तरह ये आ रहे होंगे कि हम माइनस में जाते हैं, और इसको ड्रॉ नहीं कर सकते तो हम यहाँ से ये करते हैं कि अगर ये वैल्यूज़ हैं तो इसके लिए हम माइनस में जब जाएंगे तो ठीक है, तो ये आ जाएंगे। और इस तरह हमारे पास तो ये अब क्यूबिक सिचुएशन में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। तो सिंपली अब शिफ्ट की वजह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत सारे वैल्यूज़ को। अब हमारे पास फार्मूला क्या था कि अगर हम लेते हैं सिंपली जो p की कुछ वैल्यूज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल p1 हम ले रहे हैं, p1 1.5 और p2 ले रहे हैं
2.5 P3 ले रहे हैं, 3 P4 2.5 P5। अब ये हम सैंपल की जो वैल्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सिंपल हम इसको P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हम फंक्शन लेते हैं f का तो ये हमारे पास वो t की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये हमारे पास t आ जाएगा t की वैल्यू, और ये p के बजाय हम f को यूज़ करते हैं। तो सिंपली इसी तरह हम आगे चलते जाते हैं। तो ये हमारे पास अगर मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हैं जो इससे हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो हम p की वैल्यू ले रहे हैं और हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो सिंपली ये मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं f ऑफ 4.3। तो 4.3 के लिए हमारे पास क्या उसके बी स्प्लाइन फंक्शन के क्या वैल्यूज़ आ सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली इसको फंक्शन में डालते हैं, तो वैल्यूज़ आती हैं f ऑफ 4.3। तो वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं f ऑफ 3 P1 4। अगर तो हम क्यूबिक ले रहे हैं, क्यूबिक की सिचुएशन में 4.3 प्लस F4 B। ये F है हमारे पास, ये एक्चुअली P को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके साथ। तो ये P की वैल्यूज़ आ गई जो हम ऊपर से ले रहे हैं, और सिंपली 2 4 4.3 प्लस F5 B3 4 4.3 प्लस F6 B4 4 4.3। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो जो ये वैल्यूज़ हैं ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम सिंपली इसके जो अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हैं P के हम वो इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो वो वाली वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। तो वो कैसे आएंगी, F3 क्या आएगा, B0 4 3.3 आ जाएगा, प्लस F4 B0 4 2.3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस F5 जो है वो आएगा B0 4 1.3 प्लस F6 B0 4 0.3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें इन वैल्यूज़ को, तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 0.057 और 0.59 आ जाएगा ये, और यहाँ पर आएंगे 0.35, और ये हमारे पास आ जाएंगे 0.0045। अब इन सब की समेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.7068। तो ये अगर तो हम लेते हैं क्यूबिक सिचुएशन में, और अगर हम इनको वैल्यूज़ को चेंज कर दें बजाय इसके कि हम क्यूबिक में लें, हम लेते हैं कांस्टेंट की सिचुएशन में, अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो वो नॉर्मली वैल्यू हमारे पास 2.5 आ जाएगा। तो ये होगा कांस्टेंट्स, और अगर हम लीनियर लेते हैं तो उसमें हम 2.65 आ जाएगा। तो लीनियर में हमारे पास 2.6 आएगा, कांस्टेंट में 2.5 आएगा, और अगर हम
क्यूबिक लेते हैं तो उसमें 2.7068 आ जाएगा। तो डिफरेंस कम है, लेकिन ये है कि वो जो हम अगर इसको ब्रॉडर व्यू में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इससे। अब अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमारे पास इमेज में हम इंटरपोलेशन कैसे करते हैं अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो वो अगर हम अगर हम ये करते हैं कांस्टेंट की सिचुएशन में, तो कांस्टेंट को हम कहते हैं नियरेस्ट नाइबर इंटरपोलेशन, और अगर तो हम लीनियर करते हैं तो हम उसे बाइलीनियर इंटरपोलेशन कहते हैं, और अगर हम क्यूबिक करते हैं तो हम उसे बाई क्यूबिक इंटरपोलेशन करते हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे पास अब सिग्नल जो है एक डायरेक्शन में नहीं है, एक्स और वाई है। तो मैट्रिक्स की सिचुएशन में हम क्योंकि परफॉर्म करते हैं तो इसमें हम नियरेस्ट नाइबर की इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जो बाइलीनियर है तो बाइलीनियर की सिचुएशन में दो लीनियर इंफॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं। तो इसको अगर हम सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकता है, अगर इमेज है हमारे पास और वो है 2 डायमेंशनल इमेज है तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। तो ये अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी हमारे पास रोज एंड कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि ये जो लोकेशन है, हम क्योंकि इमेज को हम 0 0 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 0 है, और हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास सिंपल नाइबर की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं इसकी हम ऑलरेडी सैम्पलिंग ले रहे हैं, तो इस वजह से ये तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इसके दरमियान की जो इन्फॉर्मेशन है अगर हमने वो लेनी है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम सिंपली अगर इसकी इंटेंसिटी आइडेंटिफाई करेंगे तो वो हमें इसके जो लीनियर इन्फॉर्मेशन है वो हमें लेना होगा, सॉरी कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो कांस्टेंट्स हम इसमें इसके जो नाइबर्स हैं उस सिचुएशन में देखते हैं कि इसका नाइबर कौन सा है, तो वो नाइबर हमें आइडेंटिफाई करना होता है सिंपली अगर हम एक्स और वाई को रीड करते जाएं और देखें कि इसका जो नाइबर है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है। तो अगर हम देखें तो ये करीब है इसके, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो इसकी इंटेंसिटी वैल्यू होगी वो इसकी भी हो सकती है। तो ये नाइबर की सिचुएशन में हम ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन जब हम वैल्यूज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, नाइबर हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अगर तो हमें ये पॉइंट है तो इसके नाइबर्स सिंपली यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इसमें ये इसके नाइबर्स आ जाएंगे। और अगर हमने कोई और पॉइंट लेना है तो इसके नाइबर्स हमारे पास इसमें जो भी पॉइंट होगा वो इसके नाइबर्स आ रहे होंगे। सेम इसी तरह हर एक पॉइंट के हम मुख्तलिफ नाइबर्स ले सकते हैं, जो कि ये हम अब इसके नाइबर्स, तो इसमें जो भी पॉइंट होगा जहाँ भी आ रहा होगा वो इसकी इंटेंसिटी वैल्यू हम ये लेते हैं, और ये है नाइबर जब हम कांस्टेंट वैल्यूज़ ले रहे होते हैं। और जब हमने लेना हो बाइलीनियर, तो बाइलीनियर की सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम सिंपली उसके दो इंटेंसिटी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल तो ये 0 0 है हमारे पास, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने अगर कोई वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, इसकी इंटरपोलेशन करनी है, तो हम करते क्या है कि हम रीड करते जाते हैं और हर एक कॉलम में हम चलते जाएंगे और हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पर जो पॉइंट है उसकी इंटेंसिटी वैल्यू क्या आ रही है, और जो यहाँ पर पॉइंट है उसकी इंटेंसिटी वैल्यू क्या आ रही है। और वो हम जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उन दोनों का एवरेज लेकर हम इसकी इंटेंसिटी वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बाइलीनियर सिचुएशन में। तो और सेम इसी तरह अगर हम क्यूबिक ले रहे हैं तो वो भी मोरलेस इसी तरह का ऑपरेशन होगा। अब ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो हमने देखा था कि अगर हम स्केलिंग कर रहे हैं तो अगर हम नियरेस्ट नाइबर की इंटरपोलेशन कर रहे हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह आएंगे।
और अगर तो हम लेते हैं क्यूबिक इंफॉर्मेशन, तो क्यूबिक में सिंपली जो उसके इंटरपोलेशन है वो इस तरह आएगी। क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक दोनों में हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये ब्लॉक्स आ रहे हैं और उसकी वजह ये है कि हम कांस्टेंट्स वैल्यूज़ ले रहे हैं। यहाँ पर स्मूथ है लेकिन फिर ब्लर इंफॉर्मेशन आ रही है, और सेम इसी तरह क्यूबिक इंफॉर्मेशन आ रही है। जब हम रोटेट करते हैं तो अगर हम रोटेशन में वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर रहे इंटरपोलेशन की, तो वो डॉट्स आ जाते हैं जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं। और अगर तो हम क्यूबिक इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, तो बाइस प्लेन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो रोटेशन है वो स्मूथ हो जाएगी। अब हम एक और चीज़ देखते हैं जो हमने बात की थी कि हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं और हम उसको कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले ये समझें कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम एक और में इमेज लेते हैं और वो एग्जैक्टली उसी साइज़ का होता है। तो जो इमेज है हमारे पास, हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी अप्लाई करें, ट्रांसलेट अगर हम उसको करते हैं या हम उसकी रीसाइजिंग करते हैं या उसकी रोटेशन करते हैं, तो उस सिचुएशन में वो हमारे पास n/n ही होना चाहिए, और जब हम उसकी इन्वर्स लेंगे तो वो ओरिजिनल इमेज को रिप्रेजेंट करे। तो इस सिचुएशन में हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? सो बाय इमेज ट्रांसफॉर्मेशन अ गिवन इमेज इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीरीज समेशन ऑफ अ सेट ऑफ यूनिटरी ऑपरेशन। तो हमारे पास सिंपल यूनिटरी ऑपरेशन हम उसको कहेंगे कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो, ए स्टार मैट्रिक्स लेते हैं और उसका ट्रांसफॉर्म ले, तो वो हमारे पास इन्वर्स के इक्विवेलेंट होगा। तो मैट्रिक ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए स्टार ट्रांसफॉर्म वेयर ए स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन ऑफ ए। तो हम ए स्टार को लेते हैं कंजंक्शन ऑफ ए, और अगर हम उसका ट्रांसफॉर्म ले और वो उस ए के इन्वर्स के इक्विवेलेंट हो, तो हम ये कहेंगे कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। एंड दीज यूनिटरी मैट्रिक्स वी विल कॉल दिस एज अ बेसिस में इमेज। तो हम इसको बेसिस इमेज इस वजह से कहते हैं कि हम इससे वापस जा सकते हैं ओरिजिनल इमेज की तरफ। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सिंपली अगर हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक्स इंटेंसिटी है वन डायमेंशन, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं Cn Nt summation n is equal to 0 to infinity. So an arbitrary continuous signal xt can be represented by a series of summation of set of orthogonal basis function, and this series expansion is given like this, that we can have x of t, and where we call this an is a real continuous function, or this is also called orthogonal basis function. And if we have a Cn, then Cl is the nth coefficient expansion. So this case is only in situation of infinite values. So for finite values, what we do, we have to take x hat t is equal to, हम सिंपली उसमें वैल्यूज को फिक्स कर देते हैं बजाय इसके कि वो n is equal to 0 और n minus 1. So capital N is the number of sample. So you now normally अब हम यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ये n है, ये हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं, हम कितने सैम्पल्स ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको एक्सपेंड करें, तो इस ये Cn की वैल्यूज़ हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और At की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो वो किस तरह होंगे?
अब क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं ये कंटिन्यूस आ रही हैं, तो कंटिन्यूस की सिचुएशन में हम सिंपली ये वैल्यूज़ लेते हैं, लेकिन अगर हम डिस्क्रीट लेना चाह रहे हैं तो हमें उसको डिफाइन करना होगा डिस्क्रीट सिचुएशन में। तो वो कैसे होंगे? सो इन केस ऑफ डिक्रीज वी हैव अ सीरीज ऑफ सैंपल्स. सो सीरीज ऑफ सैंपल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज un and un is 0 is less than equal to n is less than equal to capital N minus 1. So where 0 is less than equal to normally small n and less than and equal to capital N minus 1. So this means that U has a dimension capital N, okay, and this is for transformation. So we perform pre-multiply this vector by U now. This is if we multiply with the matrix A, then this can be a vector V. So what we do that this is in case of discrete values. So if we have a discrete series of values, then we use this formula which is un, and in case of continuous signal, then we use this formula. So for finding out the unitary matrix, what we do, we simply pre-multiply this vector U by unitary matrix A of dimension n by n. So this the size of this A is n by n. So given this vector U, so this multiplies the results in another vector V. अब ये हमें ये V दे देता है और इसको हम कहते हैं vector V is normally a transform vector and unitary matrix is normally a transformation matrix. ठीक है? By matrix equation, this V equal to A times U. If we expand this matrix equation, then how it will be? So expansion of this matrix VK, instead of U, what we do, we take a VK is equal to AKN UN, and this is the summation, and start from 0 to capital N minus 1, and K is equal to 0, 1 and N minus 1. So the values of K is 0 to N minus 1. So by this expression we get all the n element of vector AK. Sorry, for VK, all the element using capital N. If A is a unitary matrix, then from vector V, we can also get back our original vector U. So how do we do that? We will pre-multiply V by inverse of A, which is unitary matrix. So this is a conjunction transpose. So simply हम क्या करते हैं कि अगर हमें दोबारा चाहिए U ओरिजिनल, तो हम क्या करते हैं, हम A माइनस 1 लेते हैं V का, और ये इक्वल है A स्टार ट्रांसपोज ऑफ वेक्टर V. तो ये जो हमने वेक्टर V लिया, हम इसको अगर रिवर्स करेंगे तो हम ओरिजिनल U की तरफ जाते हैं. We represent the same equation in the form of series summation. This will come out to be U n is equal to, simply अगर हम इसको सिंपली समेशन इक्वेशन को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं U n को,
तो un हमारे पास क्या आएगा, un is equal to a star kn into v k, and this is for n is equal to 0, 1, 2, n minus 1, and the summation of k is equal to 0 to n minus 1. अब ये हमारे पास सिंपली अगर हम un को एक्सपेंड करते हैं और अगर हम a स्टार के n को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि वो हमारे पास क्या आएगा, तो वो होगा सिंपली a0 0, a0 1, a0 2, a0 n, सेम इसी तरह a1 0, a1 1, 1 2, a, और सेम इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे 0 1 n आ जाएगा इसी तरह. एट द एंड क्या होगा, a k 0, a k 1 और a k और n बन जाएगा. तो ये हमारे पास सिंपली अगर हम a स्टार के n को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास क्या है, एक्चुअली जो हम मैट्रिक्स A ले रहे हैं कैपिटल A, तो ये हम इसका A स्टार हम सिंपली इसके कॉलम्स वाइज हम इसके एक्सपेंशन करते हैं. तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कॉलम वाइज, ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो इमेज के सिचुएशन में नहीं है, सिंपल हमारे पास आ रहे हैं वैल्यूज वन डायमेंशनल सिग्नल की सिचुएशन में, तो अगर हम ये वैल्यूज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इमेज के लिए, तो इमेज के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो वैल्यूज लेनी होती हैं. तो हमारे पास a स्टार क्या आएंगे, अब a k और n. एक्चुअली हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिस ऑफ a है, ठीक है. और अब अगर हम फॉर्मूला लेते हैं सिंपली un का, तो k is equal to 0 to n minus 1 a star k n v k लेते हैं. तो अब ये हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला आ गया. अब इस सिचुएशन में अगर हम लेते हैं वैल्यूज इमेज के लिए, तो इमेज के लिए हम कॉलम और रोज लेते हैं, ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी. सो नाउ दिस कॉलम वेक्टर आर स्टार के एन एंड दिस स्टार a k n vector are actually called the bias vector of matrix A. And you remember this matrix A is an unitary matrix, and here what we have a sequence of sample un or vector un. So this is a vector, so in this situation, so this vector un has been represented as a series of summation of set of bias vector, and now we have to have the column of a star transpose, which is a set of bias vectors. So if we take any two columns and take a dot product of these two columns, then this should be normally 0. So how do we do it? ai dot aj is equal to k in situation of I is not equal to I is equal to j, और 0 होगा अगर तो I is not equal to j.
So if we take any two columns and take the dot product of these two columns, then the dot product is given to be 0. And if we take a dot product of a column with itself, then this dot product is non-zero. So if we take a column I and take the dot product with the ij, then k, it will become k if I is equal to j, and it will become 0 if I is not equal to j. So in situation of image, what we do, we take two values instead of one, u, m and n. So now the same concept of the representing a vector as a series summation of set of bias vector can also be extended in case of image. So in case of an image, the vector u that we have defined in the earlier case, now it will be two-dimensional matrix. So u, instead of being a vector, now it will be a two-dimensional matrix, and we represent it as u, m and n, where m and n are row and column indicates, where it starts from 0 less than equal to m, n is less than and equal to n minus 1. So this is the dimension of the matrix. So we are considering an image of dimension capital N. So here you find that AK1 or AKI is a matrix again of dimension capital M. So how do we do it? For vector V, normally if we want to go back, then we take a u of it, and if we want to find out the vector, then in that situation we take a Vm. Instead of m, we take here, because we are using m to represent the original matrix, so we take a k, and L is equal to A, K and L for m and n, u, m and n, and then we make the summation from n is equal to 0 and m is also equal to 0 to n minus 1. And because these are two column and rows, so that's why we take again the summation. And in this situation, k is less than and equal to 0 and L also is less than and equal to capital N minus 1. Now if we want to go back to identify this original matrix, in this situation what we do, we take the u, m and n, and instead of using u, m, n, what we do, we take this as a summation. So m, n is equal to 0. So instead of m, n, here what we take a k and L, because we are going back to the original image. And in here A, K, L, and this is star, M, N, and instead of U, what we do, we take a V, K and L. And in here, this M and N are less than or equal to, and then again less than or equal to minus n. So this is in situation of image, because it's the matrix and rows. So in here we conclude today's lecture, and we have studied that what is the image interpolation, and we explain it in detail, and again then what are the operation of interpolation. And after that, we learn what is the unitary matrix and what is the use of it. So we explain the equation of it,
And after that we learned that if we want to apply it on a single dimensional signal, or if we want to apply it on an image which is a two-dimensional x and y, then how do we explain this equation. So that's all for until now, and next time inshallah we will meet for some new topics. Allah Hafiz.